Good morning, dear students. Beta, welcome back to your English class. And today we are going to start chapter number 4 from our textbook First Flight, that is from the Diary of Anne Frank. Open your books at page number 48 and write down the meanings that I am going to tell you along the way. Bachche, this chapter is an autobiography. We all know that autobiography means when a person writes about himself or herself, and this is an extract that is taken from the autobiography of Anne Frank, named From the Diary of a Young Girl. So you need to remember this thing, that this chapter is an extract from her diary, right? So, and also that it is an autobiography of Anne Frank, and the name of the novel is From the Diary of a Young Girl, right? बेटा इस चैप्टर को हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा हेवायर लगे, बट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Let me give you a hint of what we are going to discuss in the chapter. So as we have already discussed that this is an autobiography of a young girl who expresses her thoughts in a diary. As you all know that in our century, in this 21st century, terms like anxiety and depression are very prevalent, and what therapists recommend is that you should start journaling. Journaling means pen down your thoughts, write down whatever comes to your mind, and that will give you a lot of relaxation. If you are feeling overwhelmed by something, if you think this is something I cannot discuss with any other person, may it be my family or my friends, then the best way is to jot it down on a diary. So she also did the same. She felt that she has no best friend in life. She says on the surface level it feels like I have a lot of friends, but in reality I don't have a real friend. So she decides to make her best friend a diary and named her Kitty. And this diary was gifted to her by her father on her 13th birthday. When she was turning 13th, her father gifted her this diary, and she was a Jewish girl. You know, Jewish, it is a religion. She was a Jewish girl who was hiding in the Second World War. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, शी वॉज हाइडिंग, क्योंकि ज्यूइश थी तो किससे हाइड कर रही थी? नाजीज से. शी वॉज हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज. ओके. And she was successful for 2 years. She was successful in being hidden, but she was caught by Nazis and sent to concentration camps. After that, Anne and her sister died due to a disease that was called typhus. Later, her father found her diary and got it published, right? So let us begin. Before you read, page number is 48, right? Annalise Mary Anne Frank, 12 June 1929, and it is not clear what is the date of her death. The year is 1945, but the date is not clear, and the month is either February or March. Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. जब जर्मन जो थे वो नेदरलैंड्स को वर्ल्ड वॉर 2 में ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो एन अपने 4 फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ छुपी थी और उसने तब ये डायरी लिखी. आपको याद रखना है कि उसके 13th बर्थडे पे उसके फादर ने उसको ये डायरी गिफ्ट की थी. वो एक ज्यूइश गर्ल थी और नाजीज़म को बिलोंग करती थी. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम. उसकी फैमिली एम्स्टरडैम कब मूव हुई? आफ्टर द नाजीज गेंड पावर. जब नाजीज पावर में आए थे इन जर्मनी, बट वर ट्रैप्ड. लेकिन वो कब ट्रैप हो गए, वो वहाँ पे कब अटक गए? व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. जैसे जैसे ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट
जो हार्डशिप्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही थी, उनकी डेथ इंक्रीज़ हो रही थी, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। तो वो जो उसकी फैमिली थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम छुप जाते हैं। कब डिसाइड किया? जुलाई 1942 में। इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। बेटा जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना कैरेक्टर्स की। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको कैरेक्टर्स के नेम पता चलेंगे। सबसे पहले एन फ्रैंक लिखना, फिर फादर का नेम, मदर का नेम, सिस्टर का नेम, राइट। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग यू नीड टू रिमेंबर कि 2 साल तक वो हाइडेड, खुद को छुपा के रखा। द ग्रुप वॉज बिट्रेड। बिट्रेड मीन्स धोखा दिया उनको, उन्हीं के किसी ग्रुप के एक इंसान ने धोखा दिया। एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड का मतलब सेंट। कहाँ पे? टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो कैंप्स जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ऑपोजिशन के इंसानों को। वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस। टाइफस इज़ अ डिसीज जिससे एन की डेथ हो गई है। इन बर्गन बेल्जन विद इन 2 days ऑफ हर सिस्टर। अपनी सिस्टर के डेथ के 2 दिन के अंदर ही। अब आपको सिस्टर का नेम भी पता चल गया। सिस्टर का नेम है मार्गरेट फ्रैंक, फादर का नेम है ऑटो। द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप वॉज हर फादर। ही रिटर्न टू एम्स्टरडैम। वो एम्स्टरडैम वापस आए आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर ख़त्म हो गई थी। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उनको वहाँ के ये पता चलता है कि एन की जो डायरी है वो अभी भी सेफ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। कन्विंस्ड, जब उन्होंने उसको रीड किया तो उनको ये चीज़ लगी दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, कि वो एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड था। तो ही टुक एक्शन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये काम किया टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम अंडरलाइन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये नॉवल भी है जो कि हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल है। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles sequences the events, jot down the events of her life। और उसने फर्स्ट डायरी कब लिखी थी? 12 जून 1942 को। और जो लास्ट फाइनल एंट्री थी उस डायरी पे वो कब की थी? 1 अगस्त 1944 की। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books because it told the story of a 13-year-old, a very raw story of her. So it was very widely famous. There have also been several films। आपको पता है कोई चीज़ फेमस हो तो उस पर फिल्म्स बहुत ईजिली बन जाती हैं। टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। डायरी से इन्फ्लुएंस हो गए डिफरेंट मीडिया की रिलेटेड चीज़ें भी आई। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। अब 13 years का बच्चा मेच्योर नहीं हो सकता, लेकिन वो जो डायरी थी दैट वाज रियल, दैट लुक्ड लाइक समबडी मेच्योर हैज़ रिटन इट। द डायरी प्रोवाइड्स, डायरी में क्या था? एन इंटीमेट एग्जामिनेशन। इंटीमेट मीन्स वेरी क्लोज, first-hand experience of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust victims वो हैं जिनको भेजा गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जहाँ पे उन्हें टॉर्चर किया जाता था। अब हमें बेसिक पता है कि एन फ्रैंक कौन थी, उसकी फैमिली में कौन कौन था और हाउ डिड शी डाई। ये कुछ आपको एक्टिविटी दी है कि क्या आप एक डायरी रखते हो, अगर हाँ तो आपको इन 4 मीनिंग्स को आपस में मैच करना, राइट। कमिंग टू योर चैप्टर, इट बिगिंस ऑन द पेज नंबर 50. Turn your pages to page number 50 and write down the meanings along with, okay? राइटिंग इन अ डायरी. नाउ दिस इज़ एन फ्रैंक राइटिंग. ये जो हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ये एन फ्रैंक ने लिखना स्टार्ट किया अपनी डायरी में. कैसे स्टार्ट किया? राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. आप भी अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे ना लिखना तो आपको समझ नहीं आएगा व्हाट टू राइट. व्हाट इफ़ समबडी रीड्स माई डायरी, व्हाट इफ़ आई रीड इट आफ्टर 5 years एंड आई फील लाइक अ फूल. तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. इट इज़ नॉट समथिंग दैट कम्स नेचुरली, but with time you get used to it, and it is a very very good emotional releasing activity. Not only because I have never written anything before, वो बोलती इसलिए नहीं हूँ कि मैंने आज तक कुछ लिखा ही नहीं था, but also because it seems to me
that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Musings का मतलब होता है thoughts. कहती डायरी लिखना मुझे इसलिए नहीं डिफ़िकल्ट लग रहा था कि व्हाट इफ़ कि क्या लिखूँ या नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जब कुछ टाइम बीत जाएगा ना तो मैं और मेरे अलावा किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा एक 13 साल के बच्चे की जो स्कूल जाता है उसके थॉट्स को पढ़ने का. ओह वेल इट डजंट मैटर. फिर वो बोलती है ओह कोई बात नहीं, इस मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग. मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ लिखूँ, मैं अपने थॉट्स को जॉट डाउन करूँ. जो मेरा पूरा माइंड स्कैटर हो रखा है थॉट्स से, मैं उनको एक सीक्वेंस दूँ. And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. इसका मतलब release my burden. कि मुझे जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं मुझे अपना बर्डन कम करना है डायरी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करके. Underline. This can come as a quotation in your exam also. Paper has more patience than people. Now imagine you are full with negative emotions and you start cribbing it to somebody. It is possible that the person sitting in front of you might listen to you for an hour or so, but after that he will be like, okay, I am done with her, she's so negative or he's so negative. So but if you start writing whatever you are feeling, then paper will not say ki now it's time to get over, I can't let her write anything more on me, right? तो वो बोलते पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वो बोल रही है लोगों से ज़्यादा. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. और बच्चे as therapists also says that diary mostly लोग तब लिखते हैं जब उन्हें sadness feel होती है, depressed feel होता है. तो वो बोलती कि और ये उन कुछ दिनों की बात है जब मुझे बहुत depressed feel हो रहा था. And I was sitting at home with my chin in my hands. अब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब इंसान थोड़ा डिप्रेशन में होता है, एंग्जाइटी में होता है, तो वो अपने हैंड अपनी चिन पे रखता है. इफ़ यू स्पॉट अ पर्सन हु हैज़ कॉन्टिन्यूसली केप्ट हिज हैंड्स ऑन हिज चिन, इट मीन्स ही इज़ थिंकिंग समथिंग, राइट? बोर्ड एंड लिस्टलेस. कहती मैं बिल्कुल ही बोर हो चुकी थी और मेरा की ज़ीरो एनर्जी थी या इंटरेस्ट था किसी भी चीज़ में. लिस्टलेस का मतलब क्या है? विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट इन एनीथिंग. वंडरिंग, और मैं क्या सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए. और फिर उसने क्या डिसाइड किया, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज. बोलती और मैंने फाइनली सोचा कि जहाँ हूँ मुझे वहीं रहना चाहिए. ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग, कि मैं जो सोच रही हूँ मुझे अपनी सोच के साथ अंदर ही रहना चाहिए. येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस. फिर वो बोलती हाँ पेपर में बहुत पेशेंस है. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, stiff-backed notebook का मतलब है बेटा जो गत्ते वाली नोटबुक होती है जिसकी हार्ड बैक होती है. वो बोलती हाँ पेपर में बहुत पेशेंस है और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है कि मैं किसी को पढ़ाऊँ कि मैंने क्या लिखा है. तो लेट्स डू वन थिंग. ये जो मेरा हार्ड बैक वाली नोटबुक है ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको डायरी बोला जाता है अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कि मैं अब डायरी को ही अपना रियल फ्रेंड बना लेती हूँ जब तक मुझे रियलिटी में कोई फ्रेंड नहीं मिलता है. इट प्रॉबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. और कहती हो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. कहती अब मैं उस पॉइंट पे वापस आ गई हूँ जिसने मुझे पिन पॉइंट किया था, जिस चीज़ ने मुझे उकसाया था. किस चीज़ के लिए? टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. जिस चीज़ ने मुझे उकसाया था डायरी लिखने के लिए. और वो चीज़ क्या है? दैट आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है. तो मैं अब जो फ्रेंड है उसको रिप्लेस किससे कर लूँगी? डायरी से. ठीक है. नेक्स्ट पैरा. वो कहती मुझे लगता है अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा. तो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. लेट मी पुट इट मीन्स लेट मी क्लियर इट. लेट मी टेल यू मोर क्लियरली व्हाट. सिंस नो वन विल बिलीव, कि किसी को भी इस चीज़ पे भरोसा नहीं होगा, दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की बच्ची इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है. और वो बोलती है एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली तो हूँ ही नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं.
एंड अ 16-year-old सिस्टर, और मेरे पास एक 16 साल की बहन भी है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और अप्रॉक्सीमेटली 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड भी बोल सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरे पास अपनी फैमिली है जिसमें कि लविंग आंट्स हैं और एक अच्छा घर है. फिर वो बोलती नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग. बच्चे अंडरलाइन एंड पुट अ स्टार. ऑन द सर्फेस मीन्स बाहर से जो दिख रहा है कि इसकी लाइफ तो बहुत हैपनिंग है, इसके पास तो बहुत चीज़ें हैं, इसको तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है ना. ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. कि मुझे ऐसा लगता है, बाहर के लोगों को मुझे देख के ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा वॉइड है, बहुत बड़ी कमी है. और वो कमी क्या है कि मेरे पास एक रियल फ्रेंड नहीं है. नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड एंड यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फ्रेंड. सो नाउ शी ऑल्सो फील्स कि उसको फ्रेंड की ज़रूरत है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. वो बोलती जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ फील होती है कि मुझे एक अच्छा समय बिताना है. आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स. कहती हम कुछ यूनिक बात करते ही नहीं है, हम कुछ स्पेशल बात करते ही नहीं है. जो हमारी डेली लाइफ में हो रहा होता है हम सिर्फ उसके रिलेटेड बात करते हैं. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. Beta, there's a saying that there are a lot of acquaintances in your life but not all of them are your friends. आप सरफेस लेवल पे बहुत लोगों को अपना फ्रेंड बोल पाओगे, लेकिन जो आपके कॉन्फिडेंट होंगे वो सिर्फ एक या दो ही होंगे. तो वो बोलती मेरे पास फ्रेंड्स तो बहुत है, लेकिन मैं किसी के भी क्लोज नहीं आ पा रही हूँ, किसी से भी मैं अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही हूँ. दैट आई एम फीलिंग सैड, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, है ना. एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और यही प्रॉब्लम है कि मुझे डायरी को अपना फ्रेंड बताना पड़ रहा है. मे बी इट्स माई फॉल्ट. अब कोई भी इंसान जो कि सैड होगा, डिप्रेस्ड होगा, वो हर चीज़ में खुद को ही गिल्टी फील करना स्टार्ट कर देगा. तो वो बोलती है मेरी ही गलती है. क्या गलती है? दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ पर्सनल मैटर्स को भी शेयर करना. आप हर किसी के साथ अपनी हर पर्सनल बात शेयर नहीं करते हो, लेकिन आपके एक दो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें आपके बारे में सब कुछ पता होता है ना. इन एनी केस, कहते कुछ भी हो, चाहे मेरी प्रॉब्लम हो, चाहे फ्रेंड्स की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. लेकिन अब ऐसे ही चीज़ें हैं कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, हम क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली, और कहती बदकिस्मती ये है, दे आर नॉट लायबल टू चेंज. वो चेंज नहीं हो सकता, ये फैक्ट अब चेंज नहीं हो सकता. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और ये रीज़न है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया है. टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस, एनहांस मीन्स इलोंगेट, इंक्रीज द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. कि मैं जो सोचती हूँ कि मेरा फ्रेंड ऐसा होगा, मेरे फ्रेंड में ये क्वालिटीज़ होंगी, तो वो सब क्वालिटीज़ मेरी डायरी में होंगी. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन. जॉट का मतलब होता है राइट डाउन, लिखना किसी चीज़ को, है ना. कहती है आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी. मुझे कोई फैक्ट्स नहीं लिखना है, इसको एक फैक्चुअल डायरी नहीं बनाना है. द वे मोस्ट पीपल डू, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जॉट डाउन फैक्ट्स इन द डायरीज, है ना. कहती मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, बट मुझे क्या करना है, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं चाहती हूँ कि वो जो डायरी है वो मेरी फ्रेंड बने. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी. और मैं अपनी डायरी को क्या नाम दूंगी? किट्टी. उसको एक पर्सनलाइज्ड इफेक्ट देने के लिए वो बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड को एक नाम दूंगी जो होगा किट्टी. बच्चे, in today's video we will do the chapter till here only. Please write down the meanings carefully and understand what has been taught to you. In the next lecture we will do the remaining part. Take care. See you in the next video.